دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد لوگ جسمانی معذوری کا شکار ہیں، جن میں بیشتر کام کرنے کی عمر میں ہیں۔ یہاں پر کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، کتنا سٹاف یہاں پر موجود ہے، اور کس طریقے سے عوام کو جن کو ضرورت ہے، جو مستحق ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، زاہدہ صاحبہ کی اپنی کہانی کیا ہے، اپنی سٹوری کیا ہے، سب سے پہلے ان سے یہ جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر اللہ تعالیٰ کا، بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے اس ادارے پر جانے سے پہلے میں آپ کی کہانی جاننا چاہتی ہوں کہ کب اس سفر کا آغاز ہوا، کب آپ نے یہ محسوس کیا، اور آپ کے ویژن نے آپ کو کس طریقے سے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں ہیلپ آؤٹ کیا؟ آپ سب دوستوں کا شکریہ، پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ آپ سب دوست یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے سارے کام کو حوصلہ افزائی کی۔ میں تقریباً جب 5 مہینے کی تھی تو مجھے پولیو ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے میں مکمل پیرالائز ہو گئی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ڈسیبلٹی تھی، وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے، تو اس طرح سے ہم 2 بہن بھائی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں۔ تو بچپن سے ہی پھر فیلنگز آنا شروع ہو گئی تھی، اپنے بھائی کی ڈسیبلٹی دیکھتی تھی، اور پھر جو سراؤنڈنگ میں اپنی وائسز سنتی تھی اپنی ڈسیبلٹی کے متعلق اور بھائی کی ڈسیبلٹی کے متعلق، تو وہاں سے مجھے شروع ہوئی میری ڈسیبلٹی کی، کہ مجھے سراؤنڈنگ سے پتہ چلنا شروع ہوا کہ میں ڈسیبل ہوں۔ اور پھر میرا کہیں بھی کوئی، میری مدر نے ایڈمیشن کروایا اسکول میں، کالجز میں، خاص طور پہ اسکول کی سطح کے اوپر، تو ایک بڑا چیلنج تھا میرا ایڈمیشن۔ تو ہر اسکول مجھے ریگریٹ کر رہا تھا، مجھے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے، تو مجھے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا۔ تو میری مدر کی ڈیڈیکیشن بڑی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہے میں زاہدہ کو پڑھاؤں گی۔ تو ایک نیولی اسکول بنا تھا، تو ان سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو خود سے لائیں لے جائیں اور ان کو ٹوائلٹنگ وغیرہ سارا آپ خود مینیج کریں گے، تو ہم ان کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر میرا فرسٹ اسٹیپ جو ہوا ایک اسکول سے، کینیڈا جونیئر ہائی اسکول سے میں نے پھر وہاں اسٹارٹ لیا۔ تو میری مدر نے پھر، میرا بڑا بھائی تھے، ان کو بھی ایڈمیشن وہی اسکول میں کروا دیا، کہ تاکہ میرا بھائی مجھے لے کے جاتا تھا، وہی لے کر آتا تھا، اور وہی پھر سارے میرے معاملات کو مینیج کرتا تھا۔ تو اس طرح سے میری ایجوکیشن کے ساتھ میری پوری فیملی کی سپورٹ مجھے حاصل ہوئی۔ میری مدر کا اور بھائی کا خاص طور پہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ان دونوں نے پھر میری بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ پھر اسکول میں پھر میں نے جب سٹارٹ لیا پڑھنے کا، آہستہ آہستہ پھر ٹیچر بھی میرے دوست بن گئے، اسٹوڈنٹ بھی میرے دوست بن گئے، کلاس فیلوز، اور انہوں نے میری ڈسیبلٹی سے بہت کچھ سیکھا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے میٹرک تک ویل چیئر نہیں لی تھی، حالانکہ میں مکمل پیرالائز تھی، تو میرے دوست جو کلاس فیلوز تھے، میرے بہن بھائی مجھے گود میں اٹھا کے لے کے آیا کرتے تھے، تو زمین پہ کرالنگ کی، کیسے کیا، بہرحال اسکول کو مینیج کر لیا۔ تو کالج کی سطح پر پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ ویل چیئر چاہیے ہوگی زاہدہ کے لیے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں آئی، تو وہاں پہ بھی بڑے چیلنج تھے امپلائمنٹ کے حوالے سے۔ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں تھا کہ وومن ود ڈسیبلٹیز وہ بھی ویل چیئر پر ہیں، وہ پراپر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، کام کریں گی کہ نہیں کریں گی، اور ان کو تو ایک اپنے مائنڈ کے تحت انہوں نے امپلائمنٹ دینی ہوتی ہے۔ لیکن بس اللہ پاک کی کرم نوازی کہ کبھی کسی چیز سے گھبرائی نہیں، ہمت نہیں چھوڑی، ہمت اپنے آپ کو آگے بڑھائے رکھا، چلتے رہے کہ کہیں نہ کہیں تو راستہ ملے گا۔ تو میری جو فرسٹ جاب ہوئی وہ تعلیم فاؤنڈیشن اسکول تھا سوئی بلوچستان میں، تو میں نے فرسٹ اپنی جاب وہاں اٹیمپٹ کی۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا، خاص طور پہ میری فیملی بڑی پریشان تھی کہ ایسا کیا ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہو۔ میں نے کہا بس میرا ایک وہ ہے کہ مجھے جانے دیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں میں امپلائمنٹ میں بھی چل سکتی ہوں یا نہیں چل سکتی، اور وہاں پہ میں اگر کامیاب ہوگی تو یوں سمجھ لیں میں امپلائمنٹ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ تو میں نے پھر وہاں پہ 3 مہینے ٹیچنگ کی، اور وہاں پہ اپنے سارے کام خود کیا کرتی تھی، اور پھر وہاں سے میں نے ان سے صرف ایک ہی چیز مانگی، میں نے کہا مجھے جوائننگ لیٹر دے دیں آپ، یہی لیٹر مجھے سرٹیفائڈ کرے گا آئی ایم ایبل۔ تو نا کیا کہتے ہیں، پھر وہ جوائننگ لیٹر لے کے میں ملتان آئی، ڈاکٹر کرامت صاحب سے بات کی جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے پھر میری ایک پاکستان کی ایک نیشنل آرگنائزیشن کی وہ چیئر کر رہے تھے، تو وہاں پہ میری جاب ہو گئی۔ وہاں پہ پھر وہ سارا ہو رہا تھا رائٹس کے اوپر کام نا، تو وہ پھر مجھے فیلنگز آنا شروع ہو گئی کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے بیسیکلی رائٹس نہیں ہیں، ہم رائٹس کے اوپر نہیں بات کر رہے تھے، ہمارے یہ دکھ بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ چل نہیں سکتے، یہ لوگ کام نہیں کر سکتے، یہ لوگ بیمار ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ کہ یہ لوگ سائیکولوجی طور پہ بہت نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں۔ تو اصل میں تو ہمیں ہمارے حقوق ہی نہیں ملے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے۔ اگر مطلب کہ ویل چیئرس عام ہوتی تو ہم ایبل ہو جاتے ہیں، انوائرمنٹ ایکسیسیبل ہوتا تو ہم ایبل ہو جاتے، تو ہمیں ڈسیبل معاشرے نے کر دیا، ہم نے ہمارے اچھا پوائنٹ ہے کہ معاشرے نے ڈسیبل کر دیا، ہمیں ڈسیبل کیا، کیونکہ آج جس بھی پرسن کو آپ دیکھیں، جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی کالج یونیورسٹیز، ان کو ایبل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ کیا ہمیں ایبل کرنے کے لیے کون کون سے انیشیٹیوز لیے گئے؟
تو ہمیں اگر ایبل کرنے کے لیے انیشیٹیو لیے جاتے تو ہم بھی ایبل ہوتے کافی تعداد میں. پوائنٹ جہاں آپ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے لیے. تو پھر اس طرح سے پھر سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کا کانسیپٹ ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اپنے جیسے معذور افراد کو ملا کے ساتھ ایک پرسن ود ڈسیبلٹیز کے آرگنائزیشنز بنائی جائے اور ہم مل کے کام کریں اور وے فارورڈ نکالیں کہ ہم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ اداروں کے ساتھ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور اس ملک کے سسٹم کو ہم معذور افراد کے لیے کس طرح ڈسیبلٹی فرینڈلی بنا سکتے ہیں. تو 2006 میں کام کا آغاز کیا. 2008 میں ادارہ رجسٹرڈ ہوا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے اور یہ سب دوست میرے ساتھ شامل ہوئے. فلڈ آیا, ہم لوگ فلڈ میں پہنچ گئے, وہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ڈھونڈا اور ان کو سرچ کر کے ان کے متعلق ہم نے مطلب ہے کہ ان کو ان کا سسٹم بنوایا NDMA سے ساتھ مل کے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں فلڈ میں اور کس طرح سے ان کے تحفظ ان کو دیا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو نیشنل سطح کے آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ایز اے اسٹیک ہولڈر, وہ انہوں نے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور اس طریقے سے آپ کا کام بہت آسان ہو گیا. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے نا سسٹمز بنانے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ ملک کے اندر سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ڈسیبل پرسن اگر کسی وجہ سے ڈسیبل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی فزیکل امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے, تو اس امپیئرمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا میکینزم نہیں ہے. کسٹمائزڈ ویل چیئر کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کب آیا, کیسے آیا, اس پر ورکنگ کیسے شروع ہوئی, آپ نے اپنے آئیڈیا کو لوگوں کو ایکسپلین کیسے کیا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں؟ کسٹمائز ویل چیئرز پروگرام میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے کیونکہ زندگی ساری کرولنگ کر کے گزاری ہے. جیسے کپڑے بھی سارے خراب ہوتے تھے, ہاتھ بھی آج تک خراب ہے. تو نا کیا کہتے ہیں, اس کی بہت کمی تھی. مارکیٹ میں ہم ویل چیئریں دیکھتے تھے, کوئی بھی ویل چیئر ایسی نہیں تھی جس پہ ہم کمفرٹیبل طریقے سے موو کر پاتے, اور پھر ان کا سائز ہمارے مطابق نہیں ہوتا تھا اور ان کی ڈیزائننگ ہمارے مطابق نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ بڑا فیل کرتے تھے. تو ہم نے پھر اپنے لیول پہ ہم اس کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا, چھوٹا مطلب پہلے اسمبلنگ کرنا شروع کی ویل چیئروں کی. پہلے تو اچھی ویل چیئریں اکٹھی کی کہ سب ڈسیبل پرسن کو ہم یہ دیں تاکہ ان کی لائف بہتر ہو. پھر ہم نے دیکھا یہ تو ایک ون ٹائم کے لیے امپورٹ ہوتی ہیں, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں, تو ایک پرماننٹ سولوشن کیوں نہیں ہونا چاہیے ویل چیئرس کا. تو پھر ہم نے پرماننٹ سولوشن یہ نکالا, ہم سب نے مل کے ہم نے ایک چھوٹے لیول پہ پہلے اسمبل کرنا شروع ویل چیئروں کو. اسمبلنگ کے بعد پھر ان ویل چیئرس کو باقاعدہ ایک مینوفیکچرنگ کی طرف لے کر آ گئے. تو میں نے پھر سرچ کیا نام کے ویل چیئر کو نام کیا دیا جائے, تو کسٹمائز ویل چیئر, میری مرضی کی ویل چیئر, اپنی جس طرح کی میری ڈسیبلٹی ہو اس طرح کی مجھے ویل چیئر ملے. تو اس سوچ کے ساتھ پھر ہم نے 2015-16 میں کسٹمائز ویل چیئرس پروگرام سٹارٹ کر گیا. اچھا زاہدہ صاحبہ, ون لاسٹ کوشچن اس حوالے سے کہ اپنے اس پورے سفر میں ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ریشو کیا ہے ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, اور کتنے لوگ ہیں جو آج تک ویل چیئر سے محروم ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو ضرورت ہے لیکن ایکسیسیبل نہیں ہے؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 15% افراد بہا معذوری پر مشتمل ہے اور اس میں زیادہ تعداد جسمانی معذور افراد کی ہے, اور ان کی جو فزیکل امپیئرمنٹ کے ساتھ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان میں سے بھی 95% ود ڈسیبلٹیز ایسے ہیں جن کے پاس ویل چیئر نہیں ہے, اور وہ بغیر ویل چیئرز کے ساری زندگی کیسے کرالنگ کر کے سیٹ کے گزار رہے ہیں. یہ تکلیف وہی جانتے ہیں یہ جن پہ گزر رہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے, اور یہاں پر ہم کسٹمائز ویل چیئر کی بات کر رہے تھے. یہ سیٹ اپ کیا ہے اور اس ویل چیئر کو کس طریقے سے مینوفیکچر کیا جاتا ہے, اس کی مینوفیکچرنگ کا پروسیس کیا ہے, اس کا اسی سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز میں پروڈکشن ہال ہے. ہم وہاں پر آپ کو لے کر چلتے ہیں اور وہاں کا ایک چھوٹا سا وزٹ کراتے ہیں. کو لے کر چلتی ہوں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے ویل چیئر پروڈکشن ہال میں, جہاں پر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو یہاں کے ممبرز ہیں اس سوسائٹی کے, ویل چیئر کی اسسمنٹ, اس کا فریم ڈیسائیڈ کرنا, اس کے ویلز بنانا اور پھر اس کی کوشش ڈیزائن کرنا, اس کو بنانا, اس پروڈکشن ہال میں ویل چیئر بنانے کا پورا کام کیا جاتا ہے. یہ ہے پروڈکشن ہال. یہاں پر آپ کو اس سوسائٹی کے ممبرز
24/7 काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हैवी मशीनरी है जिनको इस्तेमाल करके व्हील चेयर की मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। चेयरपर्सन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जायदा कुरैशी साहिबा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद है, जो कि सुपरवाइज कर रही हैं और यहाँ के तमाम मामला देख रही हैं। इनसे गुजारिश है हमारी कि मैडम अगर आप हमें इस प्रोडक्शन हॉल का एक छोटा सा टूर करवाएं और देखने वालों को भी बताएं और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और किस किस तरह का काम होता है, कौन कौन सी टाइप्स है व्हील चेयर की जो बनाई जाती हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे सारे असेसमेंट के बाद जितनी भी प्रोडक्शन है व्हील चेयर्स की, यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन है। तो जितनी भी यहाँ पे जो भी उसका प्रोसेस है व्हील चेयर्स का, उसकी व्हील चेयर्स का मतलब कि कटिंग है, मोल्डिंग है और साथ उसके फ्रेम बनाने होते हैं। फ्रेम के साथ उसकी साथ उसके फ्रंट व्हील है, बैक व्हील है। तो ये सारे के सारे वर्क जो होता है यानी A to Z सारा काम इसी हॉल में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे टोटल तादाद कितनी है मेंबर्स की जो यहाँ इस प्रोडक्शन हॉल में काम करते हैं? इसमें हमारे इस वक्त मतलब स्टूडेंट हमारे साथ का मतलब हमारी क्लासेस भी चल रही होती है व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग की। तो टोटल हमारे यहाँ 20 लोग होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनकी तादाद 20 है। ठीक है, 20 से 25 है। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो किस तरीके से होता है। एक एक मशीन हम आपको दिखाएंगे कि इस पर कितना खर्चा आता है, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, कितना टाइम लगता है। ये कोई आसान काम नहीं है और ये वो लोग हैं जिनको हम डिसेबल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि दे आर नॉट डिसेबल, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। जो एबल है, काम करने की काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। मुझे जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। ये मशीन है, इसी का काम होता है। मशीन है, इसके जरिए ना खोल के रहता है। जिस तरह से हमारा फ्रेम है, उस फ्रेम में कुछ सुराख करना तो उसमें यानी कि फ्रेम उसको होल करता है ये। ठीक है, ठीक है। और उसकी फिनिशिंग भी करता है उसकी ना। ये एक ट्रांसिस्टर काम है। फिर आगे ये हमारी कटर मशीन है जिसमें पाइप की कटिंग होती है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ डिजाइन के कटर हैं जो हर तरह की, क्योंकि उसमें जो आयरन होता है उसमें मुख्तलिफ गेजेस होते हैं। 16 गेज भी है, 18 गेज भी, 20 भी है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली हम यूज करते हैं 16 गेज पाइप का ना, वो ज्यादा अच्छा होता है और मतलब ड्यूरेबल होता है। मतलब उसका फ्रेम और व्हील के ब्रेक नहीं हो सकती। तो हमारे लिए भी ये इस तरह की हैवी कटर्स हम लोगों ने दिए हुए हैं क्योंकि इसकी कटिंग करते हैं, इसकी पाइप की कटिंग के लिए ये सारी मशीन उसी पर्पस के लिए रखी हुई है। ये भी कटर है जिसके ऊपर ये सारा मतलब ये दोस्त बैठ के कटिंग कर रहे हैं और ये सारा पाइप यहाँ कटिंग करने के बाद फिर उसका हम आगे व्हील चेयर का जो कड़ा होता है जिसपे व्हील चेयर को पकड़ के चलाना होता है, वो जो सारी मशीनें उसके जरिए है। इसपे इसका ये व्हील का जो रियर व्हील होता है जो पीछे उसका, जिसको व्हील चेयर का जो बैक व्हील के साथ जो उसको चलाना होता है कड़े में, तो वो कड़ा यहाँ पे इस यानी कि मोल्डिंग मशीन के ऊपर हम बनाते हैं। तो 3 लोग होते हैं जिसको मतलब कि पुश करते हैं। हम आपको दिखाएंगे, अभी इसको बना के भी दिखाते हैं कि किस तरह से डिसेबल पर्सन इसके ऊपर मतलब इसको बनाते हैं कड़े को ना। ठीक है, पूरी पावर लगती है, पूरा फोर्स लगा के जो व्हील चेयर बनाने का काम है वो तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है, जो सिखाने का अमल भी इसी ऑफिस में होता है, इसी जगह पर होता है। हम लोग पाकिस्तान में फर्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन है जिसने ये इंट्रोड्यूस कराया, ये स्किल स्टेट को इंट्रोड्यूस कराया। हमने नैपटेक के अंदर सिलेबस दिया बाकायदा इसका व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग का, और साथ पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भी इसकी मतलब पूरा सिलेबस हमने प्रोवाइड किया। हम ही दोस्तों ने बना के, तो बस हमने सेल्फ मेड है ये सारा प्रोग्राम, हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया इन पाकिस्तान। और क्योंकि हमने खुद डिसेबिलिटीज के साथ थे हम, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम खुद अब जो भी जिस तरह की व्हील चेयर हम चाहते हैं उस तरह की व्हील चेयर हम बनाएं। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में एक ही साइज की स्टैंडर्ड व्हील चेयर मिलती थी जिसको पेशेंट व्हील चेयर बोलते हैं, 19.5 उसका साइज है। अब वो जो बच्चा जिसकी 12 साल उम्र है, जिसका जो 15 साल का है, जिसको उनके 12 साइज की व्हील चेयर देनी चाहिए या 16 की चाहिए या 10 साइज की व्हील चेयर चाहिए, वो उसको कैसे मैनेज करेगा? एग्जैक्टली। हर डिसेबिलिटी की जो व्हील चेयर है वो उसके डिसेबिलिटी के मुताबिक होनी चाहिए, उसके साइज के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे सूट का साइज होता है, जूते का साइज होता है, ऐसे व्हील चेयर का भी साइज है। बिल्कुल सही, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है और लोगों को समझने की जरूरत है कि आपकी कंडीशन के हिसाब से जो है वो व्हील चेयर डिजाइन होनी चाहिए, क्योंकि कंफर्ट मैटर्स द मोस्ट। हर इंसान को जिंदगी में कंफर्ट चाहिए होता है,
कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहता है, हर कोई लेटना चाहता है, तो ये व्हील चेयर जो है वो उस हिसाब से डिजाइन की जाती है और इसके तमाम मैन्युफैक्चरिंग का काम इस प्रोडक्शन हॉल में होता है। और जाहिदा कुरैशी साहब ने जिस तरीके से बताया कि पाकिस्तान में ये पहला इनिशिएटिव है कि अपने कंफर्ट को देखते हुए आप व्हील चेयर डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा जो लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, सीखने आते हैं, काम करने आते हैं ताकि अपनी सलाहियतों को मजीद निखार सकें। आगे चलते हैं, व्हील चेयर की टाइप्स पर भी बात करते हैं कि कितनी टाइप्स है व्हील चेयर की। और अलियास जो कि यहाँ पे स्टूडेंट को सिखा भी रहे हैं फ्रेम बनाना, और ये व्हील चेयर का पूरा फ्रेम है, ये डाई है पूरी व्हील चेयर के फ्रेम की, इस डाई के मुताबिक फिर हम इसका ना फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, व्हील चेयर का जिस तरह के मतलब हर व्हील चेयर की मतलब एक डिजाइन मुख्तलिफ होगा तो उसकी डाई भी मुख्तलिफ होगी। यानी कि इतना ये टेक्निकल वर्क है कि कोई भी मतलब फ्रेम हर जो भी हमने कोई इसमें अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजिंग करनी है ना, उसकी हमें डाइयाँ बनानी होती है। यानी डिजाइन सबका मुख्तलिफ होता है और उसका फिर तरीकाकार भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिव व्हील चेयर का सबके डिजाइन है जो कि हम बना रहे हैं सब। ठीक है, जो एक्टिव डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए इसको बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो इसको प्रॉपर्ली यूज भी कर सकेंगे अपने स्कूल में, अपनी एजुकेशन में, अपने एम्प्लॉयमेंट में, अपने इंडोर और आउटडोर इसको इस्तेमाल कर सकेंगे इस व्हील चेयर को। और इसमें मुख्तलिफ साइजेस होंगे, इसमें हमने 14 साइज भी लेना है, 12 भी बनाएंगे, हम 18 साइज भी बनाएंगे। इस तरह से 3 साइजेस के साथ ये व्हील चेयर बनेगी। ठीक है, इस प्रोडक्शन हॉल में जहाँ पर व्हील चेयर बन रही है, यहाँ पर सिर्फ सारे मेल्स काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पे सारे मेल काम कर रहे हैं और जो हमारा असेसमेंट वाला वर्क है वो सारा हमारा वुमेन विद डिसेबिलिटीज एंड डिसेबल बच्चे हैं जो वो सारी असेसमेंट कर रही हैं सारे फॉर्म की, क्योंकि पहला मरला असेसमेंट का होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का डाटा आया, वो डाटा को देखते हैं हम, उसमें उसकी डिसेबिलिटी की टाइप देख रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसका व्हील चेयर का साइज क्या होगा, डिजाइन क्या होगा और उसकी हिस्ट्री पूरी उस पर लिखी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इनको रेफर कर देते हैं कि आपने ये व्हील चेयर बनानी है। ओके, यानी पहले प्रॉपर पूरी असेसमेंट का काम होता है एंड देन उसको बाकायदा जो है वो प्रैक्टिकली तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करके आपको यहीं पर एक व्हील चेयर बाकायदा मैन्युफैक्चर्ड मिलती है। आगे चलते हैं और उस पोर्शन की तरफ आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर पोशिश बनाने का काम किया जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर पूरा काम हो रहा है, A to Z पूरा काम हो रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं। जैसे ये सारे फ्रेम बन जाएंगे और पेंट हो जाएंगे तो फिर हम इनके यहाँ पे सारी हमारी कोशिश बनाएंगे सारे डिसेबल। ठीक है, तो इनमें नासिर है 2-3 और डिसेबल पर्सन है जो कि तकरीबन 5 से 6 हैं, तो उनको फिर हम सारा काम ये दे देते हैं कि तुम अब इसकी कोशिश बनाए आप। ठीक है, और उसमें भी टाइप्स हैं या किस तरीके से वो काम होता है? मतलब उसमें कोशिश के हवाले से ये देखा जाता है कि जितना का 18 साइज की व्हील चेयर है तो 18 साइज की कोशिश बनेगी। ठीक है, अगर 16 साइज की व्हील चेयर है तो 16 साइज की ही व्हील चेयर बनेगी। ठीक है, और व्हील चेयर की फिर उसकी कोशिश की क्वालिटी भी चेक की जाती है, तो उसमें क्या क्या चीजें हम ऐसी दें कि वो कोशिश ड्यूरेबल हो और जल्दी खराब ना हो। ठीक है, अभी आपका क्या प्लान है कि आफ्टर दिस मंथ क्या करना है, कितनी व्हील चेयर बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कब शुरू होगा? इस रमजान शरीफ में हम अल्हम्दुलिल्लाह 500 व्हील चेयर तैयार करेंगे और 500 व्हील चेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह रमजान शरीफ के फौरन बाद है। ठीक है, यानी इस मंथ में 500 व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी और इस मंथ के कंप्लीशन के बाद 500 व्हील चेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। ठीक है, रिसेंट कोई न्यू एडमिशंस भी हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी जैसे कि हमारे पास डेफ बच्चे भी हैं जो इसमें बोल नहीं सकते, वो भी व्हील चेयर के काम में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, वो भी बड़े दिल से ये सारा काम करते हैं। तो इसी तरह जो वो एडमिशन आया है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे का, तो जो हमारा स्टूडेंट था उसने उसको कन्विंस किया कि तुम इसमें आओ और आके ना ये आप सीखो, ये बहुत अच्छा काम है। तो इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि वो साइन लैंग्वेज का जो बैरियर है, वैसे तो हम खुद भी मतलब बोल रहे होते हैं, बिल्कुल साइन लैंग्वेज हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन पेयर टू पेयर काउंसलिंग होती है। ये बड़ा खूबसूरत फिनोमेना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन सबका ताल्लुक यहीं इसी शहर मुल्तान से है? जी, ये मुल्तान शहर से है सब। और लेकिन अगले मरले में जो हम अपनी क्लास, क्योंकि हम ये क्लासेस सिखाते भी 3-3 माह का हमारा बैच होता है, ठीक है, व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें उनको हम सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ओके, तो ये हर 3 माह बाद बैच चेंज हो जाता है। यहाँ से सीखने के बाद फिर यानी कि नया बैच आ जाता है, तो वो फिर हम पूरे पंजाब से ले रहे होते हैं। हमें जो तकलीफ होती थी, हम यही देखते थे कि मार्केट के अंदर एक ही साइज की व्हील चेयर है और वो भी इतनी कॉस्टली है, बिल्कुल वो हर एक के यूज के लिए नहीं है। और फिर हमें ये खुशी इस बात की है कि अभी पाकिस्तान के अंदर व्हील चेयर की मैन्युफैक्चरिंग में जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने ये स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतनी ही ज्यादा इसमें क्वालिटी भी आ रही है और ये बेहतर भी है
اور مارکیٹ کے مقابلے میں اکنامیکل بھی ہے. اچھا میڈم، ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کی بات کی ہے ویل چیئر کی، تو اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف ویل چیئر اس کی پرائس رینج کیا ہوتی ہے؟ دیکھنے والوں کو اگر ہم یہ بات بھی مینشن کرتے چلیں. اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، مارکیٹ کے اندر 12,000 کی 15,000 کی بھی ویل چیئر ہیں، لیکن بات آتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا مٹیریل. بالکل ویل چیئر میں چلنا ہوتا ہے اس کے فرنٹ ویل اور بیک ویل پہ اور اس کے فریم کے اوپر. بالکل ایسے اس کی کوشش بہت مضبوط ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ہم کوالٹی میں لے کر آتے ہیں تو پھر مٹیریل کاسٹ مارکیٹ کے مطابق بڑھ جاتی ہے. تو اس کی جو مٹیریل کاسٹ ہے کم از کم 20 سے 22,000 روپے ہے ہمیں آتی ہے مٹیریل کاسٹ اس کی. اور پھر تھوڑے سے اوور ہیڈز ہیں، اوور ہیڈز کو ہم کمپرومائز کر جاتے تو اسٹینڈرڈ ویل چیئر اس وقت 25,000 کی. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ ویل چیئر اس وقت جتنا خرچہ آ رہا ہے دیٹ از 25,000 ایک اسٹینڈرڈ ویل چیئر پہ. مختلف اور ادارے بھی آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو بھی مینشن کرتی چلیں کہ کون کون سے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ اس مینوفیکچرنگ کے کام میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں؟ نیپٹیک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن PSTF اس میں سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان بیت المال کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی بھی سپورٹ حاصل ہے. ہماری کل ہی میری مس مریم خان سے میٹنگ ہوئی ہے اسی سارے پروگرام کے اوپر، تو انہوں نے بھی اس کو ہائیلی اپریشیٹ کیا، انکریج کیا اس پروگرام کو. تو اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پچھلے دنوں فرسٹ لیڈی نے بھی وزٹ کیا ان کو، ہمارے سیٹ اپ کو، اور انہوں نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کے اندر لوکل سطح پہ ویل چیئر کی مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے. اس وقت تک ہم تقریباً 250 افراد معذوری کو ویل چیئر کی مینوفیکچرنگ میں سرٹیفائڈ کروا چکے ہیں الحمدللہ، اور ابھی کرنٹ بیچ بھی کنٹینیو ہے. تو یہ چلتا ہے جب تک یہ ادارہ ہے چلے گا. اور پاکستان لیول پہ جہاں پہ بھی افراد معذوری کو ویل چیئر کی مینوفیکچرنگ سیکھنی ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم ان کو یہ پورا پروگرام فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں. بالکل صحیح، ماشاءاللہ، تو بہت اچھی بات ہے. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ پروگرام جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے. جی بالکل، ابھی بھی یہ سارے اسٹوڈنٹ جتنے ہیں ان سے بالکل بھی یہ فری آف کاسٹ آرام سے یہاں پہ بیٹھ کے اپنی کلاسز لے رہے ہیں. 6 گھنٹے کی کلاس ہے یہاں پہ جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. 6 گھنٹے کی کلاس ہے اور یہ باقاعدہ کلاس یہاں پر دی جاتی ہے، باقاعدہ اس پورے پروسیس کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی اپنی فیلڈ میں یہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور گرو کرتے ہیں، وچ از دا بیسٹ پارٹ. یہ سارا اس کا ویل کا کام بنا رہے ہیں، یہ ویل کا کام ہو رہا ہے یہاں پر، اور سوسائٹی فار اسپیشل پرسنس کے ویل چیئر پروڈکشن ہال میں یہ ایریا ہے جہاں پر ویل مینوفیکچرنگ کا کام کیا جاتا ہے. یہ ویل کا ریئر ویل بنا رہے ہیں جو کہ ویل چیئر کا جس کا کڑا بولتے ہیں. تو یہ اس کا یہ سارے کڑے کا کام، یہ سارے یہ جو میں نے جیسے آپ کو وہ ڈائی دکھائی تھی اس ڈائی پہ یہ کڑا بنتا ہے. ٹیکنیکل کام ہو اور کوئی ٹیکنیشین موجود نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. کاشف صاحب جو کہ یہاں کے لیڈ ٹیکنیشین ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی یہاں پر کتنے طرح کی ویل چیئر بنائی جاتی ہیں؟ ابھی یہاں پہ تقریباً 5 سے 6 قسم کی ویل چیئریں جو ہے نا بنا رہے ہیں اس وقت. اور ان 5 سے 6 اقسام کی ویل چیئر میں کیا فرق ہے بنیادی؟ وہ ان کی ڈسیبلٹی کے مطابق ہے، جس طرح ڈسیبل پرسن اس کو کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اسی مطابق کسٹمائز کر کے دیتے ہیں. اس ویل چیئر پروڈکشن ہال میں جہاں پر ہمیں ایکسپرٹس نظر آ رہے ہیں، لیڈ ٹیکنیشینز نظر آ رہے ہیں جو تمام کام یہاں کا جانتے ہیں، وہیں پر یہاں پہ ہمیں کچھ اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں جو ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں. محمد ناصر ہمارے ساتھ موجود، محمد مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب سے اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کیا سیکھ لیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. محمد مرتضی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 19 سال ہے. 19 سال ہے. اور آپ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں؟ میں 3 مہینے سے. 3 مہینے ہو گئے آپ کو. تو ابھی تک آپ نے کیا کیا سیکھ لیا؟ ہم یہ پوشنگ بھی بنا سکتے ہیں، ہم ویل چیئر پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کس نے ریکمینڈ کیا تھا، کس نے بتایا تھا اس ادارے کو جوائن کرنے کا؟ میرا ایک دوست تھا، اس نے بتایا تھا، کہہ رہا گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا، ایک ادارہ اس میں چلا جا. پھر میں میم کو ملا، میم نے مجھے اس قابل سمجھا، میں اس ادارے کے اندر آ کے میں بہت کچھ سیکھ گیا. بہت اچھی بات ہے، اور آپ کو انہوں نے اس قابل سمجھا. آپ واقعی قابل ہیں، جو کہ ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ 3 ماہ ہوئے ہیں. 3 ماہ از اے ویری شارٹ ٹائم، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اچھا، یہ پوشش اگر لوگوں کو ہم نے بتانا ہو کہ یہ کیسے بنتی ہے تو آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ اس کے اندر پہلے اس کا کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر پھر اس کی پوشنگ رکھی جاتی ہے، پھر اس کی سائڈوں پہ سلائی لگائی جاتی ہے، پھر یہ ہماری پوشنگ تیار ہو جاتی ہے. اور اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کو لگتا ہے
1 घंटा लगता है इसको बनाते बनाते। ठीक है, इसको कंप्लीट करते करते 1 घंटा लग जाता है? जी। ठीक है, 1 घंटा भी कोई वैसे मतलब इट्स अ शॉर्ट टाइम, लेकिन बड़ा हेक्टिक किस्म का काम है, टेक्निकल किस्म का, जो ये कर लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी अभी 3 महीने होने वाले हैं अभी। ठीक है, 3 महीने होने वाले हैं। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल। और आप मुल्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं काजीपुर रामा से हूँ। वो इलाका है आपका। ठीक है, आपने अभी तक क्या क्या काम यहाँ पर सीख लिया? अभी ये कोशिश है, ये नीचे एक्सेसिबल व्हीलचेयर यूज़ होती है, अगर ये ना हो तो इससे मुश्किल होती है व्हीलचेयर चलाने में। तो जो मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं स्पेशल अफराद, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ, यहाँ काम सीखें। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स वो वाहिद इदारा है जो मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मैडम जायदा की बड़ी मेहनत है और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और बस अल्लाह ताला इन इदारे को कामयाब करे। मुझे तो बहुत खुशी है। आपको भी बहुत खुशी और हमें भी बहुत खुशी है कि एक कामयाब इदारा है, बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है। ये था प्रोडक्शन हॉल, जो कि हमने आपको एक छोटा सा विज़िट कराया है। यहाँ पर लीड टेक्नीशियंस से भी हमने बात की है, और यहाँ पर हमने आपको एक ओवरव्यू भी दिया है कि किस तरीके से व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हार्डली 3 मंथ्स हुए हैं, और ये पोशिश बनाने का काम जो है वो सीख चुके हैं, और बाकायदा सारा जो है वो यहाँ का मामलात भी देख लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के दूसरे डिपार्टमेंट में, और वहाँ का विज़िट कराते हैं आपको। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का ये डिपार्टमेंट कहलाया जाता है हैंडी क्राफ्ट्स क्लासरूम, और यहाँ पर क्लासरूम के टीचर भी मौजूद हैं, मेहरान साहब, जिनसे हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के हवाले से, और उनकी जो सीखने का अमल है, जिसमें वो ये तमाम चीज़ें, और ये आर्ट, एक्चुअली ये फ़न है, ये आर्ट है जिसको बिल्कुल भी निगेट नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीज़ें जो है वो बनाने का अमल यहाँ पर होता है और सिखाया जाता है, और बाकायदा यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रॉपर कोर्सेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेहरान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आपने इस इदारे को ज्वाइन किया है, और कब से आप यहाँ पर एज अ क्लासरूम इंचार्ज काम कर रहे हैं? मैम 2017 में ज्वाइन किया था, और 2019 से ये क्लासेस चल रही हैं PSTF के अंडर। ठीक है, अपने इस सफ़र में आपको कोई एक ऐसा वाक़या याद है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जब आपने बहुत खुशी महसूस की हो बच्चों को पढ़ा के? कोई ऐसा वाक़या जो जहन में आ रहा हो? मैम जो बच्चे सीख के जाते हैं और घरों में बैठ के काम करते हैं, तो उससे टीचर की खुशी सबसे ज़्यादा होती है, और इंशाल्लाह यही हमारा काम है कि जो लड़के या लड़कियां बैठी हैं जो ख़ुद मुख्तियार ज़िंदगी गुजार सकें, डिसेबल पर्सन है, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हाथा के अपने ही काम को आगे बढ़ाएं, और बढ़ने के बाद जैसे कि मेहंदी की टोकरियां बना के वो अपने घरों में बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रही हैं, बुक बैंडेज से काम कर रही हैं, ये चीज़ें होती हैं। मैम यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बनाना सिखाई जाती हैं, और आपने ये तरबियत कहाँ से हासिल की थी, या ये आपके अंदर पहले से ही था? मैम पहले भी था, और फाउंटिंग हाउस से लाहौर से मैंने सीखा भी है। उसके बाद मैडम ये चीज़ें जो हम सिखाते हैं, ये बुक बैंडेज का काम होता है, किताबों के जिल्द का हवाले से उसमें। उसके बाद हमारे पास मेहंदी की टोकरियों का काम हो जाता है, सेज का काम हो जाता है, डेकोरेटिंग का काम हो जाता है, रूम डेकोरेटिंग में आ जाता है। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग का हमें सांचा मिल जाता है कि ये बिल्डिंग बना के देनी है, तो वो प्रोजेक्ट भी हम साथ साथ बनाते हैं। जी मैम। यानी और कोई प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्कूल वगैरह के होते हैं, या कोई तालीमी इदारे जो आपसे काम लेते हों, इन स्टूडेंट्स से काम लेते हों? जी मैडम, ऐसे है कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले थीसिस कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जैसे आलूदगी के हवाले से, चिड़ियाघर के हवाले से, वो सारे हम बच्चों से ही हमसे ही बन के जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है इस क्लासरूम में बच्चों की? 25 के करीब हमारी स्टूडेंट्स है, तो वो सीख रहे हैं। उसमें ज़्यादातर फिज़िकल है, उसके बाद डेफ एंड डम है, और सो लर्निंग है, जिनको मसलन के वालिदैन भी बड़े एक्सेप्ट नहीं करते, मगर यहाँ से बैठ के हम उनको अच्छे तरीके से तरतीब देते हैं। देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ासकर वालिदैन को और ख़ासकर यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे डिसेबिलिटी के हवाले से और डिफरेंटली एबल होने के हवाले से? कितनी अहमियत है इन लोगों की, क्योंकि ये भी माशरे में अपना किरदार जो है वो अदा करें अपनी सलाहियतों के ज़रिए, अपनी काबिलियत के ज़रिए।
मैडम ऐसे है कि माजूरी को सर पे जो सवार कर लेते हैं ना, फिर वो मुश्किल हो जाती है। माजूरी को जैसे कि एक पैशन की तरफ लाएं। जैसे मैं खुद एक बैकवर्ड इलाके से हूँ, देहात से हूँ, तो मैं अपने आप को मजबूत किया, आगे बढ़ा। और मैं खुद सेल पर्सन था, मेरे लिए क्या मुश्किलात है, मैंने दूसरों के लिए वो मुश्किलात ख़त्म की। कि जैसे कि मैं खुद मुश्किल में था, मैं एक स्कूल से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे 13 साल ज़मीन पे क्रॉलिंग करके मैं चला। आज हमारे पास व्हील चेयर है, दूसरों को ये व्हील चेयर के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हुनर दिया जा रहा है उनको कि घरों में बैठे बाज़ तरीके से अपना घर को रोज़गार कमा सकें। ये चीज़ें हम उनको कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को डिसेबल ना समझें, एबल समझें और आम लोगों की तरह अपने आप को ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस हैंडीक्राफ्ट्स क्लासरूम में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हाफिज़ा ज़हरा बतूल, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़हरा? अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ से आप? मुल्तान से ही हैं? जी मुल्तान से। ठीक है जी, मुल्तान से हैं। ज़हरा, मुझे बताइएगा कि इस क्लासरूम में आप कब से हैं, कब से इस इदारे के साथ काम कर रही हैं? मुझे 3 माह मुकम्मल होने वाले हैं 1 जनवरी से लेके, और आज 16 मार्च हो गई है यहाँ तक आते हुए। और मैंने यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह, मूड़े और चारपाइयाँ वगैरह इस तरह सारा बुनने का काम सीखा है। वाओ! और कितनी देर लगती है ये कुर्सी बुनने में? एक कुर्सी बुननी हो तो कितना टाइम लग जाता है? 2-1 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है जी, 2-1 घंटे लग जाते हैं। और इस क्लासरूम में आप कितना टाइम गुजारती हैं? मतलब एक दिन में कितने घंटे आप यहाँ पे होती हैं? पहले तो मतलब रोज़ों से पहले से होता था, यानी कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अब हो रहा है 10 बजे से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो कौन सा काम करना आपको ज़्यादा पसंद होता है? मतलब आप कुर्सियाँ बुन लेती हैं और वो मूरे वगैरह का भी काम आप कर लेती हैं ना, लेकिन कोई ऐसा काम भी तो होगा ना जो आपको बहुत पसंद होगा? मुझे ये सारा बुनाई वाला काम बहुत पसंद है और मैं शौक से करती हूँ। ठीक है, ज़रा क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आगे जाके, मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं आगे जाके अपना कोई अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें, जैसे मैं खुद हाफ़िज़ा बनी हूँ, ताकि मैं अगलों को भी बना सकूँ और यानी कि दुनियावी काम भी कर सकूँ और दीनी में भी मैं अपनी यानी कि इंटरेस्ट कर सकूँ। इसी हैंडीक्राफ्ट्स क्लासरूम में हमें मिले हैं 3 दोस्त, उसामा, हसनैन और वकास। सबसे पहले हम गुफ्तगू शुरू करते हैं हसनैन से और इनसे जानते हैं कि अब तक हसनैन ने क्या क्या यहाँ पर सीखा है और कब से इस क्लासरूम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हसनैन, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 25 साल। कितनी? 25 साल। 25 साल, ठीक है, 25 साल के हैं आप। और 25 साल के ज़िंदगी के इस सफ़र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या सीखा है अब तक? मैंने बहुत कुछ सीखा, अब यहाँ पर आकर सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत कोशिश करेंगे आगे की भी। जी ठीक है। घर पे कौन कौन होता है आपके? घर में मेरे 2 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, 1 बहन है। ठीक है, जी वो ठीक है। ठीक हो गया। और यहाँ इस इदारे के साथ आप कब से काम कर रहे हैं? इदारे के बहुत कितना अरसा हो गया? 3 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं आपको इस क्लासरूम में? इधर अभी 3 माह होने वाले हैं। ठीक है, 3 माह होने वाले हैं। और ये कोर्स कितने माह का है वैसे? ये कोर्स जो आप कर रहे हैं इस क्लासरूम में, ये कितने महीने का है? 3 माह का है। ठीक है। 3 माह के बाद अब आपने क्या सोचा है हसनैन, आगे क्या करना है आपने? आगे सोचेंगे कोई काम करेंगे। जी ठीक है। हसनैन ने तो सोच लिया है कि इनका 3 माह का कोर्स हो चुका है कंप्लीट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद ये घर पे बैठ जाएंगे। इन्होंने काम करना है, बिकॉज इन्होंने इस 3 महीने में काफ़ी कुछ सीखा है। वकास हमारे साथ मौजूद है, वकास से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकास आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम। अच्छा जी, उम्र कितनी है आपकी? 19। ओके। क्या सोचा है आपने कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है? अल्लाह कामयाब करे या फ्यूचर में हमारे काम में आए, पायदार चीज़ें हो, हमारी लाइफ बने। और यहाँ पर आपको वैसे कितना टाइम हो गया इस इदारे में? 3 माह होने वाले हैं। 3 माह होने वाले हैं। तो क्या क्या सीखा है आपने क्राफ्ट्स बनाने में? मेहंदी की टोकरी वगैरह और हाँ, अच्छा, एक मेहंदी की टोकरी अगर बनानी हो तो उसमें कितना वक्त लग जाता है? आधा घंटा पौना हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि वकास का काम करने का दिल ना कर रहा हो? नहीं। वकास का कभी ऐसा कोई दिन नहीं होता कि इनका काम करने का दिल ना हो? हर वक्त आप काम कर सकते हैं? यस। ये अच्छी बात है। वकास तो बहुत अच्छे हैं। कभी कभी तो हम भी बहुत लेजी हो जाते हैं, काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर उसामा मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 22 साल है। 22 साल है, ठीक है। 22 साल की ज़िंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस मुश्किलात कुछ आती रही हैं, लेकिन हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इंशाल्लाह करेंगे। और फिर मुझे ये अदारे के साथ अटैच किया गया है और हम अब यहाँ पे हुनर सीख रहे हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमें इसका फ़ायदा भी बहुत होगा, घर पे बैठ के हम अपना काम शुरू कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। तो कुछ सोचा है कि घर पे जब आप जाएंगे, बैठेंगे, कोर्स ख़त्म होगा, यहाँ का 3 महीने कंप्लीट होंगे, तो करना क्या है? जी, पहले भी मैंने अपनी शॉप बनाई थी, छोटी सी बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ें रखी थी, और अब इंशाल्लाह यहाँ से सीख के कुछ ये भी हम घर पे बनाकर इसको सेल कर सकेंगे, तो इसका कोई ना कोई हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात है। हैंडीक्राफ्ट्स आर समथिंग दैट वन कैन नॉट से नो टू। मतलब ये आपके घर की डेकोरेशन में भी काम आते हैं। कोई शादी का फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, ऐसा ही है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और शादी का इवेंट हो, कोई पार्टी हो, एनी इवेंट, और आपने घर को सजाना हो, घर की दीवारें सजानी हो या कोई शेल्फ सजानी हो, तो इस किस्म के आइटम्स बहुत पसंद किए जाते हैं। और ये मेहनत और इसका सारा जो सहरा है वो इनके सर जाता है, बिकॉज़ ये यहाँ पर अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी काबिलियत के ज़रिए इन क्राफ्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, इनको बनाते हैं और फिर ये सेल आउट होते हैं। ये एक अलग डिपार्टमेंट है यहाँ का, जहाँ पर व्हीलचेयर की डाटा की सारी असेसमेंट होती है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एनरोल होते हैं वो बाकायदा यहाँ पर पहले उनकी असेसमेंट की जाती है और बाद में तमाम मामला जो है वो तय पाते हैं। यहाँ के इंचार्ज हैं आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आसिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तबीयत से ठीक है आप? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि कब से आप इस इदारे के साथ काम कर रहे हैं? तकरीबन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस को बने 2007 में बनी थी, और तब से ही सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस में काम कर रहे हैं मैडम जाहिदा की सरपरस्ती में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब तक के सफ़र के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से हमारी एक ये सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन एक डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हम लोग का सफ़र बड़ा मुश्किल होता है शुरू में, और ऐसे आहिस्ता जब हमने ये 2007 से अब तक का जो सफ़र किया है, अब हम कहते हैं कि ये जो पौधा लगा था, जो हमारी प्रेसिडेंट, हमारी मेंटोर, हमारा एक सरमाया है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, और पाकिस्तान में बड़ा इन्होंने, अल्लाह ताला ने मेहनत से रंग दिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में ये वाहिद डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो प्रेसिडेंट है वो फीमेल हैं और वो जाहिदा हैं, तो इसका बड़ा हमें वो होता है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ आपके सामने पूरे साउथ पंजाब से हमारे साथ हैं कि पेरेंट्स एक करते हैं कि इसको लीड एक वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ कर रही हैं, तो हम आहिस्ता ये जो पौधा 2007 में लगा था, अब हम कहते हैं कि ये तनावर दरख्त बन गया और ये फल दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का सारा विज़िट करके, पूरा ऑफिस, आपका ये पूरा एरिया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और बड़े अलाइन होकर सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर शक्ल आप क्या कहना चाहेंगे, कब बनी? मतलब जब ये इस्टेब्लिश हुई तो प्रॉपर एक फॉर्म में, एक ट्रैक पे कब चलने लगी? देखिए, सारी चीज़ों के साथ है ना, एक डिफरेंट जो पर्सन विद डिसेबल्स होते हैं उनके साथ क्वालिफ़िकेशन बड़ा मैटर करती है, और एक तजर्बा ना, और स्किल्स के साथ साथ। तो हम फिर भी मैं वही कहूँगा कि हमारी जो प्रेसिडेंट है जाहिदा मैडम, तो उनकी एक वो जो एक विजन है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जहाँ से वो ग्रूम करके आई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा सफ़र किया है, इतनी कॉलेज MA किया है, फिर BZU में, फिर मोटर बाइक पे सफ़र किया। वो एक समझती हैं कि एक उनकी वो फिर दिन रात वफ़ किया हुआ है उन्होंने, 12 बजे भी हम दिन में, और रात को भी 12 बजे 2 बजे भी देखें वो ऑनलाइन होती हैं, काम कर रही होती हैं, सोते ही बड़ा काम है, वर्क करा। और उन्होंने हमें भी यही समझाया कि जितना आप वफ़ करोगे, जितना काम करोगे, उतना रिज़ल्ट लोगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और हमने जो स्किल्स प्रोग्राम था वो हमारे लिए नामुमकिन था, वो भी यहाँ पे अब चला रहे हैं। इसके साथ साथ वो मैडम ने विज़िट कराया आपको, ये फिर व्हीलचेयर्स को बनाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो था कि 2013, 14 में, 16 में एक मीटिंग्स हुई थी कि उसमें मैडम ने कहा था हम व्हीलचेयर बनाएंगे, तो हम सरप्राइज़ रह गए कि मैडम जाहिदा क्या बात करेगी कि हम मुल्तान में व्हीलचेयर बनाएंगे, तो हम तो एक आयरन को टेढ़ा नहीं कर सकते, तो व्हीलचेयर कैसे बनाएंगे? तो मैडम जाहिदा ने ये करके दिखाया, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके और व्हीलचेयर को डिज़ाइन करवाया। फिर ये व्हीलचेयर्स को
करवाने के बाद उन्होंने फिर इसको एक खूबसूरती ये लाई, क्योंकि इनकी सर्चिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा 11 मुल्कों में होके आई हैं, तो हमें इन्होंने वही विजन दिया है कि जो बाहर और जो इदारों में जो चीज़ों में हो रहा है उसको हमने मेंटेन करना है, उस विजन को हमने स्ट्रॉन्ग करके अपने इदारे को ऊपर लेके चलना है। तो फिर इन्होंने व्हील चेयर्स के साथ वो जो प्लान दिया आप देख कर आए हैं, कलर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ का कलर देना व्हील चेयर को, रिम का कलर देना, फिर साइज़, अब मैं जिन व्हील चेयर पर बैठा हूँ ये मेरी बहन बैठी हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ की व्हील चेयर है, 14-16 साइज़ की है, मेरी 12 साइज़ की है, कस्टमाइज में 12 घंटे बैठ सकता हूँ, मेरी कोई मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं थकूँगा नहीं। फिर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की जो ये सारी चीज़ें होती हैं उनको देखते हुए इन्होंने फिर ये व्हील चेयर को कलरफुल बनाया। तो पाकिस्तान की ये पहली एक साउथ पंजाब की हैं जाहिदा, जिन्होंने एक नाम दिया कस्टमाइज व्हील चेयर। उससे पहले सब व्हील चेयर कहते थे, लेकिन कस्टमाइज व्हील चेयर का नाम दिया। तो इस कस्टमाइज के नाम ने ना पाकिस्तान को, साउथ पंजाब को से ये जब वॉइस चली, पाकिस्तान को हिला के रख दिया। तो फिर ये मुल्कों तक बात गई है। पाकिस्तान मैडम के पास तुर्की से और बहुत बड़े मैगजीन्स में इनके इंटरव्यूज आए हुए हैं कि ये कौन सी खातून है जिन्होंने ये कस्टमाइज व्हील चेयर का नाम दिया, कि यूरोप में भी कस्टमाइज व्हील चेयर का नाम नहीं दे रहे, एक्टिव व्हील चेयर होती है। तो ये पाकिस्तान के एक छोटे से शहर और छोटे से साउथ पंजाब से ये नाम चल गया, ये हिल के रह गई हैं। और ये हमें क्रेडिट जाता है औलिया कराम की सरजमीन पे, हमारी एक दानिश्वर बहन जाहिदा हमीद ने एक बड़ा इकदाम उठाया है कि ये कस्टमाइज व्हील चेयर अब साउथ पंजाब में बन रही है, मुल्तान शहर में, और हम 12,000 के करीब व्हील चेयर इस फैक्ट्री से बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब तक 12,000 से ज़ायद व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं उन अफराद तक जो कि मुस्तहिक हैं। कंडीशन के असेसमेंट के इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कि पहले जो भी अफराद यहाँ पर आते हैं उनके कंडीशन को असेस करती हैं और उसके बाद बाकायदा उनको जो है वो जिस किस्म की भी उनको फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमामा अरबाब। ओके, आप क्या करती हैं? मैं बेसिकली मैंने मास्टर कर लिया बिज़नेस ऑफ इकनॉमिक्स में फ्रॉम BZU, और अभी मेरे रिसेंटली इधर 3 मंथ हो गया मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है। इसमें मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जॉज क्लासेस भी अटेंड कर रही हूँ और असेसर भी एज अ असेसर व्हील चेयर वो भी वर्क कर रही हूँ। अभी तक का ये सफ़र आपका कैसा गुजरा है, ये 3 महीने जो आपने ज्वाइन किया है? ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं सबके साथ, मतलब डिसेबल पर्सनस के साथ, स्पेशल पर्सन के साथ, उनके साथ मिलकर उनकी खुशी उनकी गमी सारी बांटी, और इस अदारे में जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ इंजॉय किया हमने सारा टाइम। बहुत अच्छी बात है। आपकी अपनी कंडीशन के बारे में आपका क्या कहना है, क्या हुआ था, कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या मोटिवेशन मिली? बेसिकली मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था 3 इयर्स में, जब मेरी उम्र 3 साल की थी तब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं एक लेग से महरूम हो गई थी। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किलात जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैंने भी फेसेस किए हैं, और उसके बाद अब माशाल्लाह से मैं स्टडी कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे जॉब करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि हमने अपने जैसों को देखा है, क्योंकि हमने नॉर्मल हालात भी देखे हैं, नॉर्मल लोगों के साथ भी हमने टाइम स्पेंड किया है, तो वो टाइम और हम जैसे लोगों के साथ जो टाइम गुजरा है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों को देख के हमें खुद को खुशी होती है कि वाकई में हम जैसे लोग काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। उनकी वो किस तरह फेस करते हैं, हम किस तरह इन मरहलों से फेस करके आए बैठे हैं इस लेवल तक। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के पीछे हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स माशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स मुल्तान में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में इख्तिताम पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से माजूर नहीं होता। ये तो कोई पैदाइशी वाक़या होता है या किसी हादसे की सूरत में या किसी हादसे के नतीजे में माजूरी इंसान का मुकद्दर बनती है। इस एक पॉइंट पर, इस नुक्ते पर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इंसानी हुकूक़ को समझिए, बुनियादी इंसानी हुकूक़ को समझिए और ऐसे अफराद का सहारा बनिए जो आपके सहारे के मुंतज़िर हैं। माजिबी आबिद को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।